Hello, good evening. Can you hear me, Sharif? Hello, can you hear me? Yes, sir. Okay, today we'll start General Studies 3 and strategy. If you want, you can keep your mic on. What is the name of the paper? GS3? It's generally summing up, okay? Economic, agriculture, okay? Economic, agriculture, environment, disaster management, and internal security. Okay. Sherry, have you read the entire syllabus? Official Yes, sir. UPSC notification? Yeah. Hello? So, Can't hear you also. right now? Yeah, now it's okay. I just asked, have you read the actual syllabus? Yes, sir. Okay. We'll go through it again, okay? I'll display it on the board. We'll read Okay. it letter by letter. See the title of the paper, Technology, Economic Development, Biodiversity, Environment, Security and Disaster. Okay, the first, the major weightage of this paper is Indian economy. Okay, it's Indian economy issues related to planning. Okay, planning of Indian economy. Planning done by government. Okay? Mobilization of resources. Resources में क्या क्या आएंगे? Right from the core industry. Okay? Steel, coal, energy, industry, electricity, industry, fertilizer industry. From there, manufacturing model. Growth, development, and employment. Okay.
बेसिकली सिलेबस में क्या किया थी, दे हैव इंट्रोड्यूस द मेन थीम बाय द फर्स्ट वर्ड इंडियन इकोनॉमी, एंड उसके बाद उसमें भी व्हाट इज द एम्फसिस ऑफ यूपीएससी, दे हैव गिवन प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, one more favorite word of UPSC, inclusive. Okay, UPSC के दो favorite words, inclusive and sustainable. हर टॉपिक में inclusive and sustainable ये दो पाएंगे. Okay, so any aspect you read, even if it's newspaper or any magazine or any book, you have to search for the inclusive angle and sustainable angle. वो क्या होता है? I'll tell you later. Okay. इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव, ओके, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ vulnerable or marginalized groups in sharing of benefits. कहीं कोने में लिखना. Okay, can you see on the board? Yes, sir. बोर्ड का दिख रहा है? Yes, yes, yes. इंक्लूसिव का मतलब लिखना. इंक्लूसिव का मतलब क्या? सपोज Union. जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कैसे एक सेक्शन की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, उसमें कौन किसकी ग्रोथ होनी चाहिए? अलोंग विद एवरीबॉडी, वल्नरेबल, माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड मार्जिनलाइज्ड. मार्जिनलाइज्ड मतलब इनके पास, इनके साथ ऐतिहासिकली थ्रू हिस्ट्री है ना, समाज में प्रताड़ना हो. तो उसके एग्जांपल्स क्या दे सकते हो मुझे? कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप्स? आयान एंड शरीफ. इस ऑनलाइन. Can you give me examples of vulnerable groups and marginalized groups in Indian society? No idea, sir. No idea. Again, write it down, okay, as an example. SCs, SPs, OBs, EWS, okay, women and children. Okay, write it down. Okay, and what does sustainable mean? If you can't understand any word, ask me. सस्टेनेबल का मतलब है रिसोर्सेज ऐसे यूज करना है कि अगली जनरेशन को के लिए रिसोर्सेज विल बी इकोनॉमिकल. रिसोर्सेज बच जाए डजंट मैटर, अगर बच गए but बहुत एक्सपेंसिव है तो इट्स स्टिल नॉट सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल एंड यूजेबल. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बजटिंग, ये भी हम देखेंगे. मेजर प्रॉफिट. जीएस3 में इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर पे अलग अलग सवाल है. एग्रीकल्चर इज अ मेजर सब टॉपिक इन जीएस. ऑब्वियसली इकोनॉमी ओरिएंटेड सवाल रहते हैं, एग्रीकल्चर अलग से. अब यहाँ देखो
यहाँ तक एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज, इवन लैंड रिफॉर्म्स comes under agriculture. Okay, the next slide frequently asked questions. Indian topic पे ज्यादा क्वेश्चन है। ऑनलाइन टीवी and dictate also and try to answer questions and ask. First लिखना first main topic Indian economy and economic development. Indian economy and economic development. We have taken economics कहीं नहीं लिखना. Okay. So there is no study of resources or scarcity वगैरह कहीं study नहीं. Theoretical study, actual study, application उसके economics कुछ नहीं studies. इंडियन इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है? इंडियन इकोनॉमी के इकोनॉमी मतलब क्या कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस व्हाटएवर स्पेसिफाइड है तो इंडियन इकोनॉमी तो इंडिया के अंदर व्हाटएवर इंडिया डज ट्रांजैक्शंस विद द वर्ल्ड तो इसके मेन कंस्ट्रेंट्स क्या है मेन प्रॉब्लम तो इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है थ्योरेटिकल बीएससी इकोनॉमिक्स बीए इकोनॉमिक्स वैसा पेपर नहीं इंडियन इकोनॉमी की ओके उसमें सबसे पहले देखना इंक्लूसिव inclusive and sustainable. दो पेपर फर्स्ट है इंक्लूसिव तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे इंडिया हैज सीन rapid development in IT sector whatever it is it shares 60% of GDP 60% of services वगैरह but do you think it has equally contributed to upliftment of marginalized groups या vulnerable groups comment या substantiate या answer कैसे आंसर करोगे तो डेवलपमेंट को सेक्टर अपने रीच हुआ है इस वजह से पोस्ट ऑफ इंडिया रूरल एरिया के नहीं आप तो कुछ ऊपर जाएगा नहीं पर कितना परसेंट रहता है रूरल 80% तक नहीं 60% रूरल एरिया का रहता है इंडिया आज के सिटीज ही पर हां हर गांव की सिटीज पर हां सिटीज में रहते हैं लोग मोस्ट स्टिल इंडियन इज इन रूरल बहुत है पर तो वही है ना लोग इस साइड सिटी में रूरल में रहते हैं लोग काम करने के लिए सिटी में आते हैं और उसमें भी कास्ट का एंगल कैसे लाओगे उसमें कास्ट में एक एंगल आ सकता है कि जो सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट है मोस्ट ऑफ देम हैपन टू बी इट्स नॉट डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का इशू नहीं है
कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, but they happen to be poor and they happen to have less access to information. वैसे if you have less access to information, less access to mentorship या platforms, तो अपने आप हो ही जाता है, कम जॉब मिलेगी वो, that I have आके women in IT sector, हाँ बढ़िया ओवरऑल पार्टिसिपेशन फिर भी कम ही है, फिर भी कंपनी से मुझे ट्राई करती है उनको हायर करने, है ना, they want their workforce to look like the women भी है और वो कंपनी से पॉलिटिक्स ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखना इन्फ्लेशन। How we define inflation? Increasing some rate of basket स्पेसिफिक नहीं चलेगा, नॉर्मली जो महंगाई बोलने का मतलब होता है increase of prices. प्राइसेस कब इंक्रीज होते हैं, एक दिन के लिए इंक्रीज हो गया और फिर से कम हो गई तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और इट्स अ सस्टेन पीरियड। ओके, सस्टेन पीरियड में राइज होना चाहिए फॉर इनफ टाइम, ऐसा फिक्स डेफिनेशन ये होगा, सस्टेन होना चाहिए और जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज, प्राइसेस नहीं, महंगाई में प्राइस नहीं बढ़ते, प्राइस लेवल बढ़ते, तो सबका ही चीज बढ़, सबका प्राइस में सिर्फ महंगे का प्राइस बढ़ेगा इसका मतलब महंगा या नहीं, सॉरी जनरल प्राइस लेवल ही बढ़ेगा सबके, दैट इज वेरी, इसमें आगे यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोर इन्फ्लेशन और नॉन कोर इन्फ्लेशन। एक कोर इन्फ्लेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्यूल एंड फूड which directly affects the person on the ground, है ना, इन्फ्लेशन इन ब्लैक बोर्ड्स फैंस वगैरह, इन्फ्लेशन इन लग्जरी कार्स वगैरह मैटर कम करता है पर मैटर, बट कोर इन्फ्लेशन इज फ्यूल एंड फूड। ओके, और इंडिया में मेजर हमारा जितना भी इन्फ्लेशन होता है उसका मेजर कंपोनेंट कोर इन्फ्लेशन ही है, तो उसको हटाए तो इन्फ्लेशन कितना होता है बाकी फ्यूल तो ऊपर से इंडिया टैक्स is the highest taxer of fuel. Okay, पेट्रोल वगैरह पे इंडिया सबसे ज्यादा टैक्स है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हाँ बहुत ज्यादा 57-60%। Okay, so that becomes fuel becomes expensive, या fuel बढ़ गया भी और बात चल रही है। इन्फ्लेशन के लोग ने अलग अलग टाइप्स और मेजर बॉडी होना है, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, National Statistical Office, most important body in India, and with CPI, I believe you had headline inflation, agricultural workers, manual labor inflation, and other. It's the pattern. The third is the fiscal policy. Fiscal policy, what is the fiscal policy? फाइनेंशियल पॉलिसी, तो फाइनेंस करते हैं मतलब क्या होता है, सिर्फ फंडिंग नहीं, और क्या फंडिंग का करोगे, यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, दैट इज फाइनेंस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज है पहले तो है वो क्या है, कहाँ से आ रहा है और डालोगे कहाँ, दैट इज फाइनेंस। ओके, खुद के बढ़ा सकते हो, लोन लेके भी डजंट मैटर, सरकार लोन लेके भी कर सकते हो। फिस्कल पॉलिसी में क्या आएगा, बजट इकोनॉमिक्स सर्वे, ओके, और सरकार का मेन फोकस है, ओके, अभी अभी जो सरकार का मेन फोकस है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस,
तो वो आएगा। तो फिर अगर अपकमिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई जैसा भी आ रहा है, एआई हो गया, इंडिया नीड्स न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स एंड एआई नीड्स से इंडिया नीड्स फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो इसमें बजट या आपने कितना दिया? ठीक, इस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट So, may I? क्या है? Total expenditure and income sources of any government budget sheet. क्या फिर से बोलो? Total expenditures and income sources of any government budget sheets. हाँ, उसका क्या? तो ये हमें मैम ने बताया था फिस्कल पॉलिसी ऑफलाइन में एक बार। क्या? You're right on, you said it some in some other pages. Yeah. मैंने बस सिंपली लाइन बताया कि रिसोर्सेज कहाँ पे एलोकेट करो, कहाँ पे लगाओ, दैट इज योर फिस्कल पॉलिसी। उसके अंदर फिर जाओगे तो यू विल गेट एक्सपेंडिचर इनकम एंड अदर। नेक्स्ट लिखना मॉनेटरी पॉलिसी। एक मॉनेटरी पॉलिसी कैसे अलग है फिस्कल पॉलिसी से? मनी की वैल्यू, जैसे कि एक मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है मनी की वैल्यू, जो भी आरबीआई करती है बैंक के साथ नेगोशिएट करते हैं। एट द एंड द गोल इज टू कीप द एक्सचेंज रेट and the inflation in in limit, whatever the prescribed level, 2 to 4%, 2 to 6%. Okay. Monetary policy का HQ क्या है? आरबीआई, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मिनिस्टर वगैरह नहीं कर, आरबीआई को इतनी छूट दी है कि आरबीआई की मेन गवर्नमेंट बॉडी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर। फिस्कल पॉलिसी में रिसोर्सेज एलोकेट करोगे, पर रिसोर्सेज हम एक्सचेंज कैसे करते हैं? डायरेक्टली थोड़ी लाइन के लिए घूमते नहीं ना। एक्सचेंज का मैट्रिक क्या है? पैसा, रूपी नोट, है ना। नोट क्या है? नोट एक टेंडर है, वो बोलता है कि एक्चुअली इस पैसे का कुछ वैल्यू नहीं है, पर इसके बदले में इतना इक्वली अमाउंट आपको मिलेगा अगर आप आरबीआई लेके जाओ। हम आरबीआई तो लेके नहीं जाते, हम वो प्रॉमिसेस ही ट्रेड करते रहते हो। तुम्हारा 500 का प्रॉमिस मैंने ले लिया, मेरे 100 के 5 प्रॉमिस तुम्हें दे, वॉट एवर, हम प्रॉमिस ही शेयर करते हैं। आरबीआई के प्रॉमिस हर बार कोई आरबीआई नहीं करता। ठीक है? तो फिस्कल पॉलिसी में रिसोर्सेस एलोकेट हो गए, बट द मेट्रिक इज स्टिल मनी, है ना। दैट इज क्या मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बहुत अच्छी हो सकती है, मनी की वैल्यू अगर घट गई तो उसका फायदा नहीं है। ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। तो इसमें आरबीआई ने रिफॉर्म्स क्या किया, आरबीआई का स्कोप क्या है, आरबीआई की जरूरत भी है क्या। कुछ कुछ कंट्रीज में विदाउट सेंट्रल बैंक की कंट्रीज चलती है, कुछ कुछ कंट्रीज में मतलब सेंट्रल बैंक की इतनी पावर नहीं होती जितनी आरबीआई के पास है, आरबीआई के पास ज्यादा पावर है, ऐसे को क्रिटिसिज्म करते आते हैं। ठीक? कुछ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इंडिया में जितना प्रॉब्लम है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो आरबीआई ने क्रिएट की, ऐसा भी बोलते हैं कि आरबीआई की जो पॉलिसीज है, सीआरआर ऐसे लगा रही है, वो बहुत पुरानी इंस्ट्रूमेंट्स है, आउटडेटेड है, उनको भी बंद करना चाहिए, नया कुछ लगाना। बैंक्स काम, इंडिया में बैंक्स काम नहीं करते, उसका मेजर रीजन आरबीआई एक्चुअली, बिकॉज आरबीआई ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं जस्ट फॉर बैंक्स टू नॉट फेल, कि बैंक्स काम ही नहीं कर सकते अच्छे से। टू द एक्सटेंट कि जो सबसे बड़ी बड़ी बैंक्स है, उनको अगर बड़े बड़े ऑफिशियल्स जब लगाना हो एमडी सीईओ, तो आरबीआई की परमिशन लेगी, इवन इवन प्राइवेट। तो इससे क्या होता है कि जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं वो बैंकिंग सेक्टर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो इससे नुकसान बैंकिंग सेक्टर को, बिकॉज आरबीआई डिसाइड करके सैलरी होती है, इवन प्राइवेट बैंक्स। तो अगर अभी एक फेमस केस हुआ था, उसमें बैंकिंग सेक्टर छोड़ के ही जंप इनटू हेल्थ सेक्टर, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर इतना रेगुलेटेड था, उसको चाहिए उनकी सैलरी नहीं मिली, आरबीआई ने कैप लगा दिया उसको। मैं क्या अच्छी व्यक्ति अच्छी तरह हो गई खासकर वो सोना का व्यक्ति नहीं, एमडीसी भी तो बिलियन का है, एमडीसीईओ बैंक के एमडीसी वगैरह का, ये तो मिलियंस में रहते हैं, तो वो भी उस पे भी कैप लगाते हैं आरबीआई। बस मान लीजिए ना
हाँ ऐसे मालिक नहीं है फिर भी मालिक, आउटसाइडर मालिक, कौन तो कुछ भी नहीं करते आरबीआई तो फिर भी करता है। नेक्स्ट इसी नए टॉपिक बैंकिंग रिफॉर्म्स। बैंकिंग सभी आरबीआई ने इतने स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाए, सीआरआर 3 से 6% का, एसएलआर 12 से 18% का, और उसके ऊपर से 2 3 है, ऊपर से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब आपको देना ही है 20% एग्रीकल्चर को, 30% माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, किसी भी बैंक इवन प्राइवेट, तो बैंक बिजनेस ही नहीं कर पाते। अभी आरबीआई ने मैंडेट किया है कि बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को 20% तुम्हें देना ही पड़ेगा लोन्स। ठीक, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिटर्न अगर आएगा ही नहीं तो 20% खराब हो जाएगा बैंक के रिसोर्स। ऐसा है, तो इफ बैंक गेट्स 100 रुपीज टू डू बिजनेस, उसमें से 30 40 रुपए आरबीआई बोल रही है कि तुम कुछ मत करो उससे, है ना, और तुम, एंड देन बैंक इज सपोज टू मेक 50%, 50 रुपए जो बचे उससे 100 रुपीज का बिजनेस करना है, उससे ऊपर करना है, प्रॉफिट अपने पास रखना है और 100 रुपीज देने के लिए वापस कस्टमर। तो इसलिए इंडियन बैंक सफर कर रहा है। Not what is strict. If you compare Indian banking system with US, China, Singapore या स्विट्जरलैंड, तो बैंकिंग रेगुलेशन बहुत ही वीक है, वीक नहीं स्ट्रिक्ट है पर लिमिटेड। हाँ लिमिटेड है, 1 या 2% या 5% ही होता है यूएस में भी, उतने हिसाब से। हाँ हाँ, तो बैंक कैपिटलिज्म ही ना। हाँ तो वो इधर होती है आप लोग ठीक, तो 1 to 5% रखा, इधर ऐसा नहीं 20 30 40% रखा हूँ। नेक्स्ट लिखना इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इसमें अभी बेसिक बहुत क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये जो पीपीपी मॉडल, ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ऑफ बिल्डिंग एनीथिंग, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह ऑफ डेवलपिंग वगैरह, तो पब्लिक और प्राइवेट के पार्टनरशिप से करेंगे 60 40 50 50, फुल्ली पब्लिक फुल्ली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। ठीक, तो उसमें अगर पीपीपी मॉडल है पब्लिक एंड प्राइवेट को, तो कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा, मेंटेनेंस कितने साल का होगा, मेंटेनेंस क्या कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म होने के बाद क्या होगा, एंड रिकवरी में कितना होगा। तो फिर रोड कंस्ट्रक्शन का पैसा तुम टोल से ले रहे हो, वो जब कंस्ट्रक्शन का पैसा आ गया टोटल, तो फिर मेंटेनेंस का पैसा भी लेना पड़ेगा टोल से। ठीक है, अभी फेमस बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा है कि जो लोनावाला का टोल आ गया, उसमें कब तक हो गया पहले, फिर भी 2 3 4 साल तक लेते थे, तो एक सारा 1 2 हज़ार करोड़ आ गए। तो अभी उस बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा है, ये एक्सट्रा वीडियो। अब वो ज्यादा ही लेते हैं बिकॉज वो सबसे बड़ा है ना लोनावाला, मेगा एक्सप्रेस 8 लिए ना, ज्यादा पैसे, उतना बड़ा तो पहला है एक्सप्रेस, मेगा एक्सप्रेस इंडिया का। टनल भी बहुत सारे हाँ टनल के खर्चे तो बहुत गए, वो पहला मेगा एक्सप्रेस था 8 लिए क्या कहते हैं, काम तो कर रहा है पैसे बहुत लगते, जितना फ्यूल उतना टोल। उसके बेटे का इस्तेमाल कम कर दिए फिर पढ़ूंगे 85 वाला था। आप खुद ही एक करो बिजनेस से ना एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, विच इज अभी धीरे धीरे यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन रहा है। व्हाई फेवरेट, बिकॉज इकोनॉमी का जो इंडिया का मेजर वीक पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग जितना भी हो रहा है उसका 60 70% वैल्यू एडिशन एमएसएमई का, मतलब छोटे कंपनी, छोटे माइक्रो स्मॉल मीडियम जितने भी एंटरप्राइजेस है, वो उनका ही मेजर कंट्रीब्यूशन है, जो दिखाई नहीं देते, जिनका कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होता, तो वो करते रहते हैं। फिर मेजर ब्रांड्स तो हमें पता है, एमएनसी लोग, इंडिया की ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट है ना, ये सब पता है, पर मेजर वैल्यू एडिशन इनका ज्यादा है। इफ वी कंबाइन एग्रीगेट, तो इसके ऊपर सवाल आते हैं, इनके ऊपर रेगुलेशन कितना होगा। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही रेगुलेशन है,
ओके ओवरली रेगुलेटेड अभी भी लाइसेंस आज खत्म हो गया पर पूरी तरीके से खत्म नहीं है। बहुत सारे रेगुलेशन है मतलब एक कंपनी स्टार्ट करनी है मैन्युफैक्चरिंग की, सपोज यू हैव टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो जितनी परमिशन लगेगी उसको अगर पेपर में प्रिंट करो तो 100 किलो के ऊपर चल जाता है। इतने रेगुलेशन ओके लोकल रेगुलेशन आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के आएंगे, सेंट्रल के आएंगे, सरकारी लेवल पे तुम्हें इतना कुछ तो देना पड़ेगा। ये इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का पीछे है एंड मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग पीछे इसलिए क्वालिटी इम्प्लीमेंट नहीं। नेक्स्ट और माइक्रो स्मॉल मीडियम का डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन सरकार ने ही बनाई। माइक्रो मतलब क्या, 10 करोड़ टर्न हो तो माइक्रो, 50 करोड़ के अंदर तो मीडियम है ना, 100 करोड़ के अंदर तो लार्ज, ऐसा बनाया माइक्रो स्मॉल मीडियम। तो इसका अभी पिछले साल डेफिनेशन चेंज कर 5 करोड़ का 10 करोड़ का, तो डेफिनेशन से अब नेक्स्ट लिखना इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। इन्वेस्टमेंट मॉडल मतलब वही है पीपीपी वाले, पब्लिक प्राइवेट है, पूरी तरह से पब्लिक हो गया है, प्राइवेट होगा इसके रेगुलेशंस। नेक्स्ट देखना पब्लिक फाइनेंस। इसमें ऐसा लिखना चाहिए इतने सब टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडियन इकोनॉमी का जो मेन टॉपिक था उसमें 35% स्टैटिक आता है, बाकी के करंट लिखना से लिखना है इसको। 35% स्टैटिक, 65% करंट अफेयर्स लिख। पेपर 3 is considered, GS3 is considered to be the difficult most challenging paper because ये लिखने बहुत आता है एंड कहीं से भी लिख के आता है, टेक्निकल पेपर है ना, तुम ऐसे फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते, टेक्निकल। फिर नेक्स्ट लिखना एग्रीकल्चर, नेक्स्ट मेन टॉपिक। एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब टॉपिक एमएसपी। मिनिमम सेलिंग प्राइस, कितने क्रॉप्स की है, कितने क्रॉप्स की नहीं है तो बहुत ज्यादा है, कितने क्रॉप्स की एमएसपी करते हैं। ओके एनी बहुत फाइनल देखो हाँ रेटिंग मुझे लगा 2 3 बोल 10 शुगर के लिए आता है। तो शुगर मिल का अलग सिस्टम है, एमएसपी सिस्टम नहीं है अलग। ओके तो उन्हीं क्रॉप को क्यों चूज किया है, ओके कौन डिसाइड करता है। बहुत बड़ी 3 4 हायरार्की वाली कमिटीज है, सबसे ऊपर कैबिनेट कमेटी है, उसके नीचे एग्रीकल्चर प्राइसेस फिक्स करने वाली कमेटी है। ठीक? ये पूरा मैकेनिज्म है, तो वो ही फूड ग्रेन्स की चूज किए। एमएसपी के फायदे क्या है, एमएसपी के नुकसान क्या है। फिर नुकसान क्या है एमएसपी का, फॉरेन स्टेट को ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, फॉरेन स्टेट को ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, सभी सेल करते हैं सर्विस स्टेट्स। और इंडस्ट्री वाले जो उसको आप करते हैं कुछ सब सेल होता है साउथ एशिया, और इंडिया में पैसे लाते हैं। डिफरेंट क्या है, जब स्टेट को प्रॉफिट होता है सर्विस स्टेट्स में लॉस होता है। सर्दन स्टेट को इसके एक्सचेंज में मिल रहा है ना क्रेडिट्स, पैसा बिटवीन भारत और दुनिया में। पैसा तो जाएगा। देखो तुमने मैगी लिया, तुमने उसको 12 रुपए की एक बोतल, इसमें नुकसान थोड़ी तुम्हारा 5 रुपए। मैं मैगी चाहिए, तुमने मैगी नहीं ली, समझे। पूरी तरह ठीक करें ये है कि फार्मर्स हमेशा गरीब रहेगी, जो भी एमएसपी उगा रहा है, बिकॉज उसको कम प्राइस ही मिलेगी एमएसपी, कभी भी मार्केट हाई पीक वाले वैल्यू प्राइस नहीं मिलेगी। वो मार्केट में बेच सकता है। हाँ पर अगर सरकार ने बोला है इसी ग्रेन का एमएसपी निकलेगा तो ज्यादा लोग बनाते हैं, कंपेयर टू अगर नहीं बोला होता तो। हाँ तो फिर ज्यादा लोग बनाते हैं, उसकी कुछ वैल्यू नहीं देते, 1 रुपए 2 रुपए की दो ओनियन
ऐसा है। ये मतलब बहुत ही बात है। हाँ, और ऊपर से तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी पूरा फ्लक्चुएटिंग स्टेबल एग्रीकल्चर के लिए बनाना नहीं, बस मॉनसून स्टेबल नहीं होता। इरिगेशन का प्रॉब्लम है। इरिगेशन का प्रॉब्लम, ऊपर से फार्मिंग का भी प्रॉब्लम है, फार्मिंग लोग नॉलेज बेस्ड फार्मिंग कम है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रैगमेंटेड लैंड एंड फ्रैगमेंटेड लैंड ओनर्स। इंडिया की पर कैपिटा लैंड ओनरशिप कितनी है? 0. कुछ लोग एकर्स। एक मिनट। हाँ, 0.86 कुछ ऐसा कुछ ना। तो मतलब एक आदमी के पास उतनी जमीन है, एक आदमी के पास 100 एकड़ होना, एक आदमी और 100 लोगों के पास 100 एकड़ होना, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो मतलब एक साथ नहीं करेंगे 100 एकड़ खेती, है ना? तो एक छोटे से लैंड में ज्यादा खर्च आता है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा होता है, बट स्केल बढ़ती है तो इनपुट कॉस्ट कम होता है, तो प्रॉफिट मार्जिन फर्क। तो इंडिया की लैंड छोटी है, लैंड होल्डिंग छोटी है, तो कोई भी क्रॉप उगाने का खर्चा ज्यादा है पर पर्सन। ठीक, वही सेम 100 एकड़ अगर सबने किसी एक आदमी को करने के लिए भी दे दिया तो भी प्रॉफिट ज्यादा। पर इंडिया में तो कॉन्फ्लिक्ट, मोस्ट ऑफ द मर्डरर्स एंड राइवलरीज होते हैं लैंड के ऊपर। वो कोई कुछ देगा बोलेगा मैं जला दूंगा तो मैं किसी को ऐसा कुछ। ऊपर से इतना लैंड के इश्यूज होते हैं, फिर भी इंडिया का लैंड सिस्टम डिजिटाइज है। अभी अभी चालू किया वो डिजिटाइज लैंड, तो बोले भी कितने साल लगेंगे, फिर लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज नहीं, फिर का पेटेंट। फिर नेक्स्ट देखना इरिगेशन। एमएसपी से नुकसान, ओवरऑल नुकसान ज्यादा हो रहा है। एमएसपी का उपयोग तब था जब ग्रीन रेवोल्यूशन होने वाला था, सक्सेसफुल करना था, उसके बाद धीरे धीरे कम करना चाहिए। ओके, पर ऑब्वियसली एनी गवर्नमेंट पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन एक बार चालू है तो कभी मरता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। ब्यूरोक्रेसी का मैंने बताना, ठीक है। तो फिर अभी फार्मर्स have started doing things that have don't have एमएसपी, ताकि प्रॉफिट मिले कुछ ना। फार्मर्स खुद से हॉर्टिकल्चर में घुस रहे हैं, बाकी का बी के भी मजा कर रहे हैं और उसको भी सारा बस। एमएसपी में गारंटीड एक कुछ तो भाव मिलेगा, पर तुम्हें पता है उससे कुछ ज्यादा ऊपर नहीं प्रॉफिट। ऐसा एमएसपी का प्रॉफिट। एमएसपी ऑब्वियसली इज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल नाउ, ना वोटिंग वगैरह के लिए यूज करके दैट में वोट पे चढ़ने। नेक्स्ट इज ना इरिगेशन। तो इरिगेशन में क्या पता होना चाहिए, कितने टाइप्स ऑफ इरिगेशन है, कितने टाइप से कितना हो रहा है तुम्हारे स्टेट, हर स्टेट में इन जनरल, तुम्हारे स्टेट में और इंडिया में ही। ओके, ट्यूबवेल इरिगेशन कितना है, कैनल इरिगेशन कितना है, वेल इरिगेशन कितना है। ओके, इरिगेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स कितने। ओके, ओवर इरिगेशन का क्या है डिटेल, फर्टिलिटी चली जाती है लैंड की, सैलिनिटी बढ़ जाती है। ओके, जो इरिगेशन फैसिलिटीज है आर दे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और किस सेक्शन को सोसाइटी में ज्यादा है किस में नहीं है। महाराष्ट्र में ले लो तो ईस्टर्न महाराष्ट्र में कितना है, वेस्टर्न महाराष्ट्र कहाँ ज्यादा है इरिगेशन, वेस्टर्न महाराष्ट्र में ज्यादा। इरिगेशन डिपेंड्स ऑन की नियरेस्ट बिग बिग सोर्सेस ऑफ वाटर कहाँ पे, यू नीड लार्ज रिवर्स फॉर इरिगेशन। नेक्स्ट is my food processing. It is an upcoming industry in India. ये फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। काफी फार्मर्स कैसे बना रहे हैं, या ट्राइंग टू मेक एग्रो टूरिज्म एक बना रहे हैं नया कंसेप्ट कि एग्रीकल्चर बड़ा प्लॉट लेके उस पे फार्मिंग करके करके दे विल मेक इट अ प्लेस टू विजिट बाय पीपल, है ना? स्कूल के लिए जाते हैं, बहुत बड़े लोग जाते हैं, उधर ही कैफे होगा। ओके, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे सामने लेके व्हाट एवर द थिंग हम एग्रो और एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट ऑन साइट। ओके, तो सपोज कैंड टमाटो, वहीं से टमाटो लेके कैंड टमाटो बना के बेचेंगे, तो केचप का एग्जांपल है, ठीक है? वैसे तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग ऑन साइट प्रोसेसिंग प्लांट्स मेजर। फूड प्रोसेसिंग में इंटरनेशनल एस्पेक्ट आता है, इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज ब्लॉक करते हैं इंडिया का प्रोडक्ट्स, कैसे?
सेम कि इंडिया का फूड स्टैंडर्ड लो, ओके। यूरोपियन फूड स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है, इंडिया का कम है। तो इंडिया कितना भी प्रोजेक्ट भेजे, कितना भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, सिक्योरिटी रीजन से वो ब्लॉक कर दे। फूड प्रोसेसिंग में ग्लोबल लेवल क्वालिटी लाना इज अ मेजर नीड इंडिया का। इंडिया का एग्रीकल्चरल फूड एक्सपोर्ट इसलिए नहीं होते बाहर की तरफ, ओके, बिकॉज यूरोप एंड यूएस मार्केट्स में फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, एंड यूरोपियन यूनियन सेट्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एनी फूड प्रोडक्ट, ओके। तो इसलिए वहां पे रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए हमारे मैंगोस कितने भी अच्छे हो वहां पे नहीं जा सकते, स्पेसिफिक कंट्रीज नहीं जा सकते, ये फूड प्रोडक्ट फूड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है ना सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का बेसिक इंक्लूड मीनिंग है कि रॉ मटेरियल्स लेके कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है ना, कहाँ से पहुंच रहा है एंड कितने जल्दी पहुंच रहा है, इज द चेन कंटिन्यूअस और डिसरप्टेड, ओके। चेन डिसरप्ट क्यों होती है? मोस्टली बिकॉज ऑफ वॉर, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स की वजह से, ओके। और जिन देशों के बीच से चल रही है उन देशों में मतभेद हो गए, या कोई ट्रेड पैक्ट साइन होने वाला था वो नहीं हुआ, या साइन हुआ था उसको वापस दे, ठीक। या जैसे ईयू में सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ट्रेड रुक गया, और इसलिए सप्लाई चेन। फिर पिछले 2-3 सालों से सप्लाई चेन में मेजर इशू क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स का, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये 16 रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो उस पे अभी 60 नहीं 80% रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर प्रोक्योर्ड एंड माइंड बाय चाइना वर्ल्ड, ओके। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिमांड चाइना को टॉपल करने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ग्रुपिंग बनाई है यूएस, इसमें इंडिया भी, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री, इसको टॉपल करने के लिए बनाया। चाइना ने कहाँ से लाए? चाइना की खुद की भी है, ओके। तो बहुत सारे डिपॉजिट्स है रेयर अर्थ करने के, प्लस अफ्रीकन, ओके। तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करें, उसमें इंडिया कैसे घुसेगा, इंडिया को कैसे मिलेगी। नेक्स्ट वीक ना क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्या आएगा कि लोग, व्हाट आर द ट्रेंड्स गोइंग ऑन, आर पीपल स्टिल डूइंग वन क्रॉप पर ईयर, मल्टीपल क्रॉप्स, 2 to 3 क्रॉप्स, ओके। मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर दे आर लर्निंग फ्रॉम बेसिक क्या बोलते हैं ग्रेन प्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर, ओके, ग्रेन प्रोडक्शन टू बी हाइव कीपिंग, okay, are they still doing traditional farming, or are they changing to cooperative farming? तो इंडिया में जैसा प्रॉब्लम है फ्रैगमेंटेड लैंड का, उसके एक ही सोल्यूशन है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। मतलब 100 लोग 100 फार्मर जमीन लेके एक साथ आके बोलेंगे कि हम एक ही कुछ तो करेंगे एक साथ, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। वो लास्ट करके हो नहीं पाया है अभी, ओके। ऊपर से इंडिया में लैंड होल्डिंग के सीडिंग्स है, सीडिंग मतलब 20 एकड़ ज्यादा तुम यू कैन नॉट ओन एग्रीकल्चर, मतलब नहीं ऐसे भी है बहुत सारे सीडिंग्स, कुछ कितना भी तुम ओन नहीं कर सकते। हाँ पर उस पे डिपेंड करो, फर्टिलिटी पे डिपेंड करो। तो सबसे पहले 20 एकड़ तो जाते हैं, हाँ, और सेकंड एक उसका 40 एकड़ है, और मैक्सिमम ये सो जिसको करनी भी नहीं है, जिसके पास है 10 एकड़, तो उसके पास ही रहती है, जिसको करनी है, जिसको 20 एकड़ से ज्यादा चाहिए, 20 एकड़ सक्सेसफुल है, वो भी नहीं कर सकता। दैट इज द डीमेरिट ऑफ लैंड सीलिंग। लोगों को, सरकार को लगता है कि लैंड सीलिंग करके गरीब कम गरीब ज्यादा गरीब नहीं होंगे, अपने ज्यादा आमदनी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फोर्सेस ऑफ इकोनॉमी से वो तो काम करेंगे, ठीक। सो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली काम करते हैं, जिनका उनके पास कम है दूसरे की ले लेते काम करने के लिए, और उसको पैसे देते ऊपर। नेक्स्ट लिखना एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग।
अभी इसमें द एम्फोसिस इज इंडिया के जो लोकल फूड प्रोडक्ट्स, लोकल क्रॉप्स है ना, व्हीट वगैरह छोड़ दो। जैसे अगर राइस भी देखो तो ब्लैक राइस है नॉर्थ ईस्ट का, है ना। बिहार का ब्लैक राइस फेमस नेटिव, यहाँ का जैसे इंद्रायणी है पश्चिम महाराष्ट्र का, ठीक है? वैसे तो हर रीजन का जो स्पेसिफिक क्रॉप है उसकी मार्केटिंग ग्लोबल लेवल पे कैसी और पैन इंडिया कैसी। जैसे फिर तो इंडियंस को भी पता नहीं है अपने इंडिया के अलावा ना बाकी का कुछ क्रॉप्स है, स्पेसिफिक क्रॉप्स। तो जो यूपी गवर्नमेंट ने अभी स्कीम निकाली थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, तो वो इतनी सक्सेसफुल हो गई थी, बहुत सारे स्टेट में भी चली गई, पैन इंडिया में ही लगा रहे हैं। तो यूपी से स्टार्ट की सिर्फ स्टेट लेवल। तो उन्होंने क्या किया कि एक आइकॉनिक प्रोडक्ट ऑफ वन, वैसे ही उसमें क्रॉप्स भी जीआई जीआई टैग वाला तो पुराना स्कीम है सरकार का, है ना, टू मेक फेमस इंडिजिनियस क्रॉप्स या व्हाटएवर क्रॉपिंग पैटर्न्स या प्रोडक्ट्स वगैरह। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर ही सब आएगा। नेक्स्ट देखना एग्री रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में वो तीन एग्रीकल्चर बिल्स इंट्रोड्यूस किए थे, वो नहीं हुए थे, इंट्रोड्यूस को वापस ले लिया गया आफ्टर आई थिंक आई नो मेनी मंथ्स, एक साल तो ज्यादा चला गया प्रोटेक्शन। तो 13 months का 23 months का प्रोटेस्ट चला। एग्रीकल्चर में मेन रिफॉर्म्स वही है, लैंड होल्डिंग का एक, ओके, और मॉडर्नाइज नहीं, तो उसमें रिफॉर्म्स कैसे करें। तो अगर एग्रीकल्चर में बिकॉज 48% ऑफ इंडियंस आर एग्रीकल्चरिस्ट, तो मेजर वोट बैंक फार्मर्स, तो उसमें रिफॉर्म्स लाना मुश्किल है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, इवन इफ दे वांट। तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर को वैसे क्या छोड़ देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में रिफॉर्म्स लाते हैं। तो उस साइड यू कैन सी मल्टीपल रिफॉर्म्स कि सरकारी मिल्क फ्री खाद या उसको फोर्टिफिकेशन करके फीड वगैरह दे रहे हैं। But another problem with with farming and animal husbandry is कि इंडिया के जो काउस है एंड बफेलोस की प्रोडक्टिविटी ग्लोबल लेवल से बहुत 30-40% की प्रोडक्टिविटी, तो जहाँ पे 10 लीटर आ सकता है वहाँ पे 4 लीटर नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज फॉडर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। फॉडर की क्वालिटी, फॉडर इज बेसिकली जो आसपास होगा वही तो खिलाओगे, जाके खरीद के खिलाना नॉर्मल फार्मर का ना। So that is a major issue in food quality. Next thing now, organic farming. ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में भी लेवल्स हैं। फुल्ली ऑर्गेनिक होता है, लीस्ट यूज ऑफ पेस्टिसाइड, सिंगल यूज पेस्टिसाइड, से 3-4 एबीसीडी लेवल्स की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं। उसमें मोस्ट ए लेवल प्रोडक्ट मतलब कुछ भी यूज नहीं किया उसमें, फिर कुछ में फार्मिंग के वक्त यूज नहीं किया, पर बाद में प्रिजर्वेटिव यूज किए सभी के सब, है ना, तो इट कांट बी 100% ऑर्गेनिक। अभी इसमें भी 40-60 आता है, 40 स्टैटिक, इस सेकंड टॉप 40 स्टैटिक 60 करंट अफेयर्स सॉरी। नेक्स्ट बिग टॉपिक देखना इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज इस गवर्नमेंट का पुश बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा है, तो ये वी विल एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट देखना रोड्स। रोड, न्यू रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है पिछले 5-10 years में। न्यू एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन एनएचआई का है, बट द डीमेरिट लाइज है कि जो पुराने रोड है उनकी क्वालिटी कम है, नहीं इनकी क्वालिटी ग्रेड होगी। सरकार इस भी कि हम एवरी ईयर पर डे 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर नए रोड बना रहे हैं, पर पुराने रोड की क्वालिटी पे क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ न्यू एनएचआई इनिशिएटिव ऑफ फास्ट वेहिकल प्रोडक्शन हाईवे प्रोडक्शन। एक उसमें क्या होता है, एनएचआई ने पूरा फोकस कर दिया नए हाईवे बनाने,
और पुराने हाईवेज के कॉन्ट्रैक्टिंग एंड क्वालिटी लेवल पे डिग्रेडेशन के इश्यूज, दैट इज वन। सेकंड थिंग ना रेलवेज। ओके, रेलवे में वन इश्यू इज रेलवे नेटवर्क बड़ा है या नहीं बड़ा। रेलवे नेटवर्क मतलब नई लाइंस बिछी है, नई रोड्स बने हैं रेलवे वाले, फिर नए नेटवर्क्स। सेकंड इज रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले सालों में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, क्योंकि पिछले सालों में बहुत बढ़ा है इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, डीजल इंजन लोकोमोटिव्स पे डिपेंडेंस बहुत कम है। पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन 70% पूरा ग्रिड इसी इलेक्ट्रिफाइड है। तो उसमें और क्या इश्यूज आते हैं कि न्यू टाइप्स ऑफ रेलवे सिस्टम्स, जो हमारा रेलवे का गेज इसको बोलते हैं, मीटर गेज है ना। उसमें 1 मीटर का ही मीटर गेज है इंडिया का। मीटर गेज मतलब डिफरेंस बिटवीन टू ट्रैक्स रेलवे का। ये जो है वाइड वेट, वो ब्रिटिश की तरफ से ही है, वही सेम मीटर ब्रिज। तो जब सरकार बोलती है कि हमने वंदे भारत इंट्रोड्यूस की, वंदे भारत के टॉप स्पीड वॉटर 300 पर जो वो 1 मीटर का गेज वाले जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स की लिमिट ही 80 किलोमीटर पर है। तो वंदे भारत की ऑन जब भी चलती है वो 200-250 स्पीड से नहीं चलती, वो 80 या 100 से स्पीड से ही चलती। प्रॉब्लम इज इन ट्रैक्स। ट्रेन कैन बी बुलेटिन, बट ट्रैक अगर उस लेवल का नहीं है तो क्या होगा। ट्रैक जो है वो डीजल लोकोमोटिव के लेवल का। ओके, ट्रेन नहीं आ रही पर पूरा सिस्टम भी बदल रहा है। क्यों, खर्चा ठीक है, पर टाइम भी बहुत लगेगा। खर्चे के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, ऐसा नहीं है, तो ना, पर टाइम बहुत लगेगा। आगे न्यू जो, हाँ, इसमें एक सब टॉपिक मेट्रो सिस्टम, मेट्रो सिस्टम। पिछले 10 साल में बहुत सारे मेट्रो सिस्टम बने, कुछ कुछ उसमें ऐसा है कि मेट्रो सिस्टम की जरूरत नहीं थी फिर भी बने सिटी। ओके, जैसे नागपुर को आई डोंट थिंक जरूरत होगी मेट्रो सिस्टम। मेट्रो सिस्टम पूरा होने के लिए उतना पॉपुलेशन होना सिटी शुड बी मेगा सिटी, उतनी नहीं है मेगा सिटी, चाहे फ्यूचर में हो जाए। उधर के सिटी मतलब लोकल लोग बोलते हैं ना कि बस एक घूमने के लिए जाते हैं बच्चों को लेकर, बिकॉज डेली कम्यूट है नहीं इतना कि मेट्रो प्रॉफिटेबल तो होनी चाहिए ना लगाने के बाद। मेट्रो का वही रेवेन्यू होता है ना पर डे वगैरह। तो मेट्रो का जितना खर्चा है आई थिंक 40,000, दोनों मिला के 40,000 करोड़ रुपए है। पुणे मेट्रो और नागपुर मेट्रो साथ एक प्रोजेक्ट के अंदर चालू है, जिसमें आधा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा आधा स्टेट और आधा वर्ल्ड बैंक देती है, ऐसा ज्वाइंट इनिशिएटिव। उसमें नागपुर के ऑब्वियसली पहले बन के तैयार हो गई, तो देखी बनी की लगा के और लगने वाली उधर अभी स्टार्ट कर दे, नागपुर में नहीं करी उधर। बैंगलोर मेट्रो या हैदराबाद मेट्रो चालू है, चेन्नई है, ऑब्वियसली द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड मेट्रो नेटवर्क इज दिल्ली। क्योंकि दिल्ली का 1999 में चालू हो गया था, बन के भी हो गया था। दिल्ली में 49 से पूरी फुल चलती है। दिल्ली इज द मोस्ट ऐप फॉर मेट्रो सिस्टम। मेट्रो सिस्टम अगर बंद कर दे दिल्ली बंद हो जाएगी, दिल्ली में फटका पड़ेगा। मुंबई में कितना ही बना लो खराब भी होता है, बस हमेशा लगता है कि ये डिजाइन नहीं रही इतना बना, फिर वो जैसे नेक्स्ट थर्ड लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के लिए, पोर्ट्स। पोर्ट्स में आता है पब्लिकली ओन पोर्ट्स, पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन पोर्ट्स, पूरे प्राइवेटली ओन पोर्ट्स। ओके, पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट है बिकॉज पोर्ट्स ऑलवेज आर द मिलिट्री इंपॉर्टेंट साइड। क्या अगर मिलिट्री का प्रेजेंस हो भी ना, फिर भी पोर्ट से ही शिप्स जाता है, और नेवी का कुछ भी बिजनेस हो पोर्ट से ही। शिप्स को तो कहीं तो भी लॉक करना होगा ना, तो एनी सिविलियन पोर्ट इज मिलिट्री इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री इंपॉर्टेंस, इसलिए पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी इंडिया में मेजर पोर्ट्स बहुत ही कम है। ओके, 8 ही मेजर पोर्ट्स है, 8 या 10 मेजर पोर्ट्स है इंडिया। उसकी संख्या अभी कोस्ट लाइन हमारी कितनी 12,000 की, तो जितना कोस्ट लाइन है उस हिसाब से तो बहुत ही कम है ना। तो मेजर पोर्ट्स बहुत चाहिए, दैट इज मेजर।
उसमें यू हैव टू नो ईच अदर, उसमें थोड़े फैक्ट्स है कि बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो विशाखापट्टनम का है, जेएनपीटी का कौन सा है, क्या है, कितने सेक्टर कोई। थर्ड नेक्स्ट लिखना लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सिमिलर साउंड। लॉजिस्टिक्स में ऐसे स्टैटिस्टिक्स आते हैं कि एक गुड को 10 किलोमीटर कवर करने में इतना टाइम लगता है, उतना खर्चा आता है पर नहीं। ओके, तो लॉजिस्टिक्स में it is by air, by rail, by road and by water. Okay, sea. By water में दो आते हैं, by sea and by inland waterways. Okay, तो पानी के द्वारा किया हुआ ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स इज द चीपेस्ट पर किलोमीटर, ये सबसे चीप होता है। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी पिछले 3-4 साल में इनलैंड वाटरवेज पे ज्यादा काम कर रही है। इनलैंड वाटरवेज कहाँ बनेंगे, जहाँ पे कनेक्टेड रिवर सिस्टम हो और बड़े रिवर, कनेक्टेड रिवर सिस्टम से बड़े रिवर्स और लेक्स कहाँ पे, नॉर्थ में सबसे ज्यादा गंगा का सिस्टम, यमुना का सिस्टम, ब्रह्मपुत्र का सिस्टम। वहां पे गंगा जहाँ से चालू होगी उससे लेके वेस्ट बंगाल तक, है ना, तो इंडियन वाटरवेज हाईवेज बने हैं। ठीक है? तो उसमें कृष्णा के गोदावरी भी है, कावेरी भी है, ठीक है? और जो केरला के बैक वाटर्स है उससे हाईवे सिस्टम बना है, तो इंग्लैंड वाटर बिकॉज चीपर है। और लोकल मछुआरे इंस्टेड ऑफ, जैसे ड्राइवर्स यहाँ पे एक फैक्ट्री का सामान लेके वही और जाता है ना, फ्यूल वगैरह सुबह 4 बजे गए, तो फ्यू द सेम लोकल फिशरमैन डज दैट बाय हिज बोट, खुद की बोट, तो ज्यादा सस्ता माल मिलेगा। ओके, बिकॉज पानी के थ्रू पर किलोमीटर कॉस्ट होती है, फ्यूल कॉस्ट और व्हाटएवर, बिकॉज फ्रिक्शन कम है ना रोड से, पानी से इजीली क्लियर होता है। नेक्स्ट देखना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनिवर्सिटी ब्रॉड है ना, बहुत कम रिवर्स होते हैं। और भी एक ब्रह्मपुत्र उनसे बड़ी, नहीं, गंगा भी है ना। ब्रह्मपुत्र सबसे ब्रॉड है। हाँ, बंगाल वगैरह तो जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है ना, तो ये हर रिवर पे नहीं कर सकते। बस इतना थोड़े से ही पार्ट मुझे पता होता तो नहीं, गंगा का पूरा स्ट्रेच बना था है। खराब करके वो खराब, मतलब वो दया तो बात की इशू है खराब का। दिल्ली से लेके पटना तक यू कैन ट्रांसफर रोड्स, समझे? दिल्ली में यमुना, यमुना से लेके पटना तक है। ब्रह्मपुत्र दाग के ऊपर वो तो गुवाहाटी तक जाता है सर। क्या नाम है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का प्रॉब्लम, इंडिया स्पेसिफिक, इसकी हमारे मोस्ट ऑफ हमारी सिटी से वो बहुत पुरानी है, ओनली 300-400 एटलीस्ट। इसके अराउंड आपकी सिटी बनी, पहले कोई भी छोटी सिटी होती, पुणे भी ओल्ड है, 300-400 साल पुराना। तो अब ओल्ड सिटी होने के कारण प्लान सिटी करना बहुत मुश्किल है। अभी जो ओल्ड सिटी एक वेट एरिया है, इसमें तो प्लान कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। तो ये अनप्लान्ड ओल्ड होने के कारण अनप्लान्ड सिटी के अराउंड ही एडजस्ट करके सिटी बनाना पड़े। उसमें डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग पे फोकस नहीं होता, बिकॉज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन प्लानिंग के दुष्परिणाम इमीडिएटली नहीं करते। ओके, 10-20-30 साल बाद पता चलता है जब हीट अचानक आने चालू हो जाती है, पेड़ ही नहीं दिख रहे, अचानक लोग रैंडमली रास्ते पे आंदोलन चल पड़े हैं हीट की वजह से। हाँ, वैसा तो वो 20-30 साल बाद आता है ना डेली, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। पुणे में स्टिल भी सर्टेन सेक्शंस में पुराने पुराने पेड़ उन्होंने बचा के रखे हैं। पुणे है सिटी, बाकी तो हाँ जो रैंडमली बढ़ रहे हैं सिटीज, इनमें तो सीधे सीधे काट में जाता है, तो फिर इमीडिएटली पता नहीं चलता। अभी भी जो यूनिवर्सिटी रोड का भी चल रहा है प्रोटेस्ट, यूनिवर्सिटी रोड के सब रोड सब पुरानी कंक्रीट तोड़ने वाले हैं इसमें, मेट्रो के लिए। और ऑब्वियसली वो लोग आएंगे, लोग गवर्नमेंट वगैरह करेंगे, वो नहीं होगा।
पुणे के लोकल लोग में है बहुत, है ना, एक्टिविज्म, इसलिए बच जाता है। अभी तो जेएम रोड के भी जो ट्रीज थे वो भी कटने वाले वो जेब रोड की स्पेशलिटी है आपको बहुत होती है लोग वापस आए हैं। देखो जेएम रोड के सब ट्रीज जाने वाले थे मेट्रो वाली लाइन, मेट्रो जेएम रोड से आएंगे, तो प्रोटेस्ट की वजह से मेट्रो अभी नदी से जा रहा है, नदी से ऊपर आए। हाँ तो मैंने नहीं कहता सब सर्टिफिकेट का इधर आए वैसे तो वही पे वैसे भी कुछ तो यूनिवर्सिटी भी कर रहा है, ऊपर तो 50 60 70 80 साल पुराने पेड़ है सब। तूने बनाया रेसिडेंस के लिए बनी माइंड के लिए नहीं करना सैलरी उसकी तो बोलते हैं तो सर्टिफिकेशन से सब वो क्या होगा, फिर लिखा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आएगा रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें निकाल बदल सरकार की स्कीम्स है, सब्सिडी देती है सरकार, तो रूफटॉप सोलर में भी सब्सिडी है, एंड सोलर पंप्स पे भी फार्मर्स को सब्सिडी। फार्मर्स को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत लगती है, पंप्स की वेल से पानी निकालते हैं, ठीक? वो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, आधे इलेक्ट्रिसिटी पे होते हैं, आधे ऐसे डायरेक्ट डाले हुए होते हैं लाइन से, ठीक? तो विदाउट मीटर डायरेक्ट तार डाल, हाँ करंट, तो उसका वो हर फार्मर का लाइट बिल होगा डालने पास कर, जो करता है वो हम भरते हैं, तो सिटी में उसका वो सेस ऐड करके देते हैं ऐसा, और फिर कर देना आपको। तो सोलर पंप भी आते हैं, उसमें भी 60 या 70% सब्सिडी। आगे सरकार खुद सोलर पावर जनरेशन प्लांट बनाने की बहुत बड़े, ठीक, 8 लाख का जो बनाया, 8 इंडिया का सबसे बड़ा, गुजरात का जो है, राजस्थान में उससे बड़ा बनाने वाला है, ये सब आएगा उसमें। एंड इनोवेटिव पावर पावर प्लांट जैसे रिवर फ्लोटिंग पावर प्लांट, लेक फ्लोटिंग सोलर पैनल पावर प्लांट बनाने वाले हैं। आई थिंक तेलंगाना गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट टू कम अप विद दिस प्लान की लेक पड़ी है, तो लेक पे फ्लोटिंग सोलर पैनल प्लांट बने, वो भी आएगा इंडिया में, 2 3 उस पे काम भी चल रहा है। नेक्स्ट है ना पीवीपी मॉडल्स, पीवीपी मॉडल। फिर फोर्थ मेन पॉइंट है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर पहले प्रीवियस मेंस के अगर तो पीवाई को सिंपल चीज लिखते तो बहुत ही इजी बेसिक सवाल होते थे साइंस से टेक में, पेपर ऐसे बहुत स्पेसिफिक और टेक्निकल सवाल, इंजीनियरिंग टाइप सवाल पूछते हैं। इसमें सवाल कितना भी टेक्निकल, ऑब्वियसली यू आर नॉट उन सब चीजों के ज्यादा नहीं है ना, यू हैव टू राइट समथिंग दैट वी नो अबाउट। तो फर्स्ट है ना स्पेस टेक्नोलॉजी, और यूपीएससी के यूपीएससी में कीड़ा होता है जो किसी को नहीं पता, फ्यूचरिस्टिक है, जो अगले साल का पेपर में आते हैं वो इस साल ही पूछा। ओके, तो अगर एआई अभी भी फेमस है तो एआई का कई क्वेश्चन 2 साल पहले मिल जाए ऐसे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में फिर बहुत ही नीच नीच कुछ तो ढूंढ के निकालते हैं कोई तो टर्मिनोलॉजी, और दे मीन बाय स्पेस टेररिज्म, ऐसा कुछ तो निकाल के लेंगे जो कभी है ही नहीं, 2 साल बाद शायद आ जाएगा। You feel you have to use your previous knowledge or concepts and try to answer. Okay. अभी ट्रम्प के फर्स्ट प्रेसिडेंसी में स्पेस फोर्स का कंसेप्ट है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड स्पेस की फोर्स, फोर्थ ब्रांच ऑफ आर्म फोर्सेस। ओके, दैट वाज अ न्यू थिंग एंड ही सैंक्शनड इट, उसके लिए पैसे भी सैंक्शन कर दिए, उसके लिए बनाना भी चालू कर स्पेस। ओके, फिर प्रोवाइडिंग फ्री इंटरनेट अक्रॉस, इंटरनेट प्रोवाइड करने का मेजर हिंड्रेंस क्या है कि अगर तुम्हारी ज्योग्राफी बहुत खतरनाक है, जहाँ पे तुम टावर नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा सकते, इलेक्ट्रिसिटी एक बार चली गई तो टावर नहीं लगा सकते, तो इंटरनेट एक्सेस होना मुश्किल है। ओके, बट स्टारलिंक की वजह से इलॉन मस्क ने इम्प्रूव की सैटेलाइट बेस्ड डायरेक्ट 5G दे सकते हैं, है ना, स्टारलिंक।
And then, but because it is American company, the Starlink based, so government can use the same technology as a tactic in war, है ना? तो वो भी आएगा स्पेस टेक्नोलॉजी। इंडिया हैज इट्स हैव इट्स ओन इंडिजिनस स्टारलिंक टेक्नोलॉजी। ठीक, इंडिया की इंडिजिनस मैपिंग टेक्नोलॉजी तो इट्स ऑन द वे, बन रही है सिस्टम। स्टारलिंक टेक्नोलॉजी का क्या? ठीक, इज इट अ सॉल्यूशन टू प्रोवाइड फ्री या गुड इंटरनेट एक्सेस इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया? ऐसा है। अभी यूक्रेन वॉर में स्टारलिंक प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, इंटरनेट जो डिस्ट्रॉयड एरियाज को वहां। नेक्स्ट वीक ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक्चुअली इंटेलिजेंस है या वो सिर्फ एक अच्छा वाला एल्गोरिथम? इज इट रियली इंटेलिजेंट और इज इट जस्ट अ गुड गूगल सर्च इंजन कि खुद से कुछ क्रिएट कर सकता है, या इंटरनेट पे ऑलरेडी है उसका कुछ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके बना है? ओके, डज इट हैव क्रिएटिव नोबल थिंकिंग? खुद से नई पोएम लिख सकता है क्या एज अ ह्यूमन? और सब पोएम्स पढ़ के कुछ तो बना के वो बना? मोस्ट ऑफ द एरियाज आर इंग्लिश में, देयर आर ट्रू है। ओके, तो उसमें एलएलएम स्कैन वगैरह वगैरह स्पेस और है। हाउ विल India fall short behind the AI global race, है ना? तो उस पर क्या कर सकते? What initiatives can you come up with? क्या है? इंडिया ध्यान ही नहीं दे रहा है, रानी बजट में भी कुछ नहीं है। थर्ड लिखना बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर की मिला के सवाल है कि जीएम क्रॉप्स है, अभी नए जीएम क्रॉप जो अप्रूवल में है, जीएम मस्टर्ड का जो इशू चल रहा है पिछले 2-3 साल से, जो एक्चुअली जो कमेटी अप्रूव कर दी उन्होंने कर दिया, पर फिर एनवायरमेंटल इस पे प्रोटेस्ट करते हुए सब कुछ फिर हो गई, फिर से वो हाई कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में चली गई, अप्रूव हो गई, फिर से प्रोटेस्ट हो गई। जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों पे, फूड प्रोडक्ट्स पे, व्हाट इज योर स्टांस? ओके, इनका हेल्दी है पर वही है ना, ये नहीं जैसे कि चीजें नेचर के साथ जो डायरेक्टली खिलवाड़ करती है उसके डीमेरिट्स इमीडिएटली पता नहीं चलते। समझे? वैक्सीन के लोग खिलाफ क्यों होते थे? साइंटिफिक कम्युनिटी में वैक्सीन के ऊपर बहस हुई थी, बिकॉज वैक्सीन तो बना लोगे, उसके डीमेरिट्स इमीडिएटली नहीं पता चलता अनलेस यू यूज इट। तो अगर डीमेरिट्स नहीं पता है तो तुम खाओगे क्या? कुछ ले वो लोग ही कह रहे हैं कि बहुत बार मेडिकल साइंस में ऐसा हुआ है कि कुछ तो ड्रग बना है कि उसको पास कर दिया, उसको एक जनरेशन ने खा लिया, बाद में पता चला कि जिस जनरेशन ने खाया उसके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम। 40 करोड़ इसमें तो रहेगा, चाबी के क्रॉप से वो सफिशिएंट नहीं है। अभी तो क्रॉप सफिशिएंट है, फूड सिक्योरिटी तो इंडिया के पास होगी, बट अभी ये क्या है, ऑयल सिक्योरिटी भी आना चाहिए, फूड ऑयल सिक्योरिटी, इसकी वजह से चल रहा है। और पॉपुलेशन बढ़ गया, फूड, हाँ, तो मस्टर्ड वगैरह ऑयल सीड्स पे क्यों जा रहे हैं? बिकॉज पाम ऑयल पे डिपेंडेंस कम कर, पाम ऑयल डायरेक्टली रिलेटेड है कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, पर वी आर यहाँ पे पेट्रोल पे जिस जैसे डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे, वहाँ पे पाम ऑयल पे डिपेंडेंट है खाने की, 60-70-80% पाम ऑयल ही बने। इनको कुछ भी वो पैकेट में सनफ्लावर है उसमें पाम ऑयल मिक्स हो, कि सनफ्लावर उसमें 10-20%, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से जो ऑयल सीड्स है उसके जीएम क्रॉप्स लाते हैं, पर उसका डीमेरिट अगर ऐसा हुआ कि जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग इनफर्टाइल हो गए, तो क्या करेगा? ऐसा हो सकता है कि इन चीजों में ऐसा इश्यूज होते हैं, जो इंटर जनरेशन वो पता नहीं चलते, जैसे लैब टेस्ट में नहीं पता, है ना? तो वैसे यूएस में एक तरह का जो पास हो गया था 1960 में, है ना? तो वो इट वाज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ना, वो गोली खाने से प्रेग्नेंट नहीं होती, है ना? पर उसके नेक्स्ट जनरेशन में उनकी जितने फीमेल बच्ची है वो हुई,
जिन्होंने ये रखा है उन सबको सर्विकल कैंसर हो। हम ऐसे इफेक्ट होते हैं तो इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट और डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन है इनके आ रहे हैं। नेक्स्ट है ना रोबोटिक्स। पीछे अभी तो रोबोटिक्स में रेस वॉर चल रहा है, रेस चल रहा है कि विल मेक द ह्यूमनॉइड रोबोट सबसे पहले। सोफिया है, सोफिया कैसे बोल रही है प्रॉपर ह्यूमनॉइड, चलना फिरना बैठना वो टेस्ला में भी कुछ है। इसमें घर में हो गया, इसको जो करना होगा ऐसे ऐसे पांच पेज का चल रहा है तो उसके तीन चार आइडियाज आपका ठीक है। हाँ, ठीक है। जो भी एम्बिशियस होता है, इफ यू हैव मनी, इफ यू डोंट, इवन इफ यू डोंट हैव मनी, अगर क्रेजी आइडियाज है और तुम कर सकते हो तो करो। बेसिकली इवन इफ द आइडिया फेल्स, उसका बैकग्राउंड में इतने अच्छी अच्छी बाकी चीजें का डेवलपमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे लाइक वर्ल्ड में जितने भी इनोवेशंस हुए, दे आर पार्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ समथिंग एल्स ओनली। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर लेजर बनी है तो लेजर लेजर के लिए नहीं बनाई थी, किसी और चीज के लिए बनाई थी, तो एज अ बाय प्रोडक्ट बन गई एक्सीडेंट। इट्स मोस्ट इनोवेशन एक्सीडेंटली बने एक्चुअली। तो इफ यू हैव समथिंग एम्बिशियस, अभी जितने भी आपकी टेक्नोलॉजी दे आर आल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ ईदर वॉर और स्पेस। तो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, गलती से माइक्रोवेव बन गया ऐसा है। तो भी वो उसमें मेजर फाइटर एयरक्राफ्ट की सबसे ज्यादा वो मोस्ट इनोवेशन ऐसा ही है। बाकी डायरेक्ट इंटेंशनल इनोवेशन नहीं होते ज्यादा, मोस्टली इंटेंशनल होते। तो रोबोट बनाने जा रहे हो तो गलती से कुछ अलग बना दो, वर्ल्ड को हेल्प कर, यूनिक द रोबोट फेस। दैट्स इन ना क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी में सुपर कंप्यूटर्स कितने हैं इंडिया का, उतना उसमें शेयर कितना है इंडिया के इंडिजिनियसली डेवलप सुपर कंप्यूटर्स कितने हैं की पावर क्या है, हाउ डू दिस की कंपेयर विद द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जो अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के साथ प्रॉब्लम एक ही है कि सिर्फ एक ही कंपनी को दुनिया में वो बनाने वाला नहीं, ताइवान TSMC वॉट एवर, बट वही है ना, ले लेने से वो मिलेगा ऐसा नहीं होता ना। इनोवेट नहीं, इनोवेट कर देगा, फिर भी वो टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए ना। इमरजेंसी कंट्री डिस्ट्रॉय होगी। उसके लिए वो जियो कॉम्प्लिकेटेड होता है, हाँ इसलिए सेमीकंडक्टर में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट यही है, एक ही कंपनी है जो जिन्होंने इन्वेंट किया था और जो बना रही है सेमीकंडक्टर। इंडिया नहीं बना सेमीकंडक्टर। और उसके ऊपर ऑब्वियसली बाकी के भी कंट्री सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, पर वो पेरेंट कंपनी, मेन कंपनी है ना, ये जो बनते हैं उसकी चीप कॉपीज बनती हैं। और वो जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है, बनाने के लिए जो मशीन्स बनती है वो नेदरलैंड्स की कंपनी बना। एक्चुअल फिजिकल कंस्ट्रेंट्स है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के, तो ताइवान में जितना टेंशन बढ़ेगा उतना, तो उस टेंशन का फायदा ये है कि बाकी कंपनीज have started their own R&D बनाने सेम के लिए। उस ताइवान के ऊपर हमला हो सकता है, इस वजह से एनवीडिया बिकेम सच बिग कंपनी। सेमीकंडक्टर इशू में इंडिया में भी हमने परसों सेमीकंडक्टर प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ गुजरात में। गवर्नमेंट भी जो नेदरलैंड्स मैंने बोला जहाँ से भारतीय है मशीन सिर्फ वही बनती है, उसके साथ टायर करके ऊपर नेक्स्ट ना नैनो टेक्नोलॉजी। और फिर ये था डिफेंस।
क्या बात कंफर्टेबल डिफेंस टेक्नोलॉजी डिफेंस टेक्नोलॉजी ने अभी हॉट टॉपिक में क्या है ड्रोन देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेसिटी इवन ये ईरान के पास न्यूक्लियर रिसोर्सेस नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर रिसोर्सेस को एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना के उसको मिसाइल में डालना और वो मिसाइल पहुंचाना हम स्पेस करता है ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो रिसोर्सेस हो सकते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो सकती है हमारा न्यूक्लियर डिलीवरी टेक्नोलॉजी अभी तक तो भी नहीं है। अभी इस वॉर की वजह से हो सकती है वो बनाते दे आर प्रेशर्ड इनटू मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स पहले इतना प्रेशर नहीं था अभी इन्वर्ट करके उनके पास और प्रेशर बन गया कि वेपन्स होनी चाहिए नाउ दे विल स्टार्ट इशूइंग स्टार्ट मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स इसके पहले जो खोमेनी था उन्होंने फतवा जारी किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स आर अगेंस्ट इस्लाम तो हम डेवलप नहीं करेंगे ऐसा फतवा दिया था अभी वो फतवा वापस ले नाउ दे विल स्टार्ट डूइंग इसमें इंडिया इजराइल विल बी देयर एंड इंडिया रशिया इंडिया रशिया सबसे पहले आया था सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है डिफरेंस टेक्नोलॉजी आज 40 to 50% पाए वैल्यू जो भी डिफेंस है वो रशिया से ड्रोन टेक्नोलॉजी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इजराइल से स्टार्ट हुई हाँ ओके रशिया के पास सबसे बड़ा पार्टनर है फ्रांस इंडिया डिफेंस में ट्रेडिंग नेक्स्ट देखना एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इसमें फर्स्ट टॉपिक लिखना क्लाइमेट फर्स्ट टॉपिक क्लाइमेट चेंज बेसिक कंसेप्ट पता है क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग पहले नहीं हो रही थी अब हो रही है बेस बढ़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बढ़ेगा ओके पहले भी होता था आगे भी होगा ह्यूमंस नहीं होगी तो भी होगा ओके पहले भी हुआ था ह्यूमंस नहीं बट जो होता है जिस रेट से आइस कैप मेल्ट होती है वो हम इंट्रोड्यूस करके CO2 इंट्रोड्यूस करके पड़ा दैट इज अ ग्लोबल वार्मिंग अभी इतना तो ठीक है पर ग्लोबल वार्मिंग को ठीक कैसे कर सकते भी है क्या मतलब इतना एक दो 3 सेंचुरीज का पॉल्यूशन जो है वो अचानक से कम नहीं होता ओके अगेन फॉर एवरी कंट्री दे हैव टू डिसाइड बिटवीन पॉल्यूशन करना है और लोगों को इस मतलब कम दाम में चीजें देनी है या पॉल्यूशन नहीं करना है तो लोगों को हाई दाम में चीजें देनी दैट इज द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस ओके कोल पेट्रोलियम वगैरह इज शिप चीपर देन सोलर पावर so you can't force people to use solar renewable energy because वो महंगे हैं। तो उनको खुद के पॉकेट से ज्यादा पैसे देके करना पड़ेगा सेम चीज जिसके लिए सस्ते अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है पीपल विल ऑलवेज चूज सस्ते अल्टरनेटिव्स ओके तो दैट इज द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ कंट्रीज तो डेवलप्ड कंट्रीज से लेकिन ये प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं है बिटवीन पेट्रोल एंड रिन्यूएबल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा ट्वाइस प्राइस वो ऑप्शन करना देयर इज नो उसमें कोई तो डिबेटिंग की और पीपल विल चूज दैट इज अ थिंग इज बिटवीन इन्फ्लेशन एंड कौन सा का यूज कर तो डेवलप कंट्रीज अपने टेलीविजन में जाके अफ्रीकन कंट्रीज को बोलते हैं कि तुम मत यूज करो पेट्रोलियम तो डेवलपिंग सब डेवलपिंग कंट्रीज को तो वो बोलने के लिए ठीक है पर इट इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल है ना सेम चीज के लिए तो डबल पैसा थोड़ी करो डबल टेक करो हाँ उन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने रीड कर लिया मेरे सब देख और अब वो लेक्चर देना उनका फेवरेट काम है ऐसे अभी भी यू सी ग्लोबल एमिशंस का कंट्रीब्यूशन पर कंट्री
पर मेरे पूरा 300 साल का ये ले लो, तो उसमें भी अभी भी यूरोपियन कंट्री आ रहे हैं। तो उनका हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एडिशन अगर काउंट में ले लो, और सिर्फ इस ईयर का लेंगे तो उसमें चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएस आ गए। फिर देखना बायोडाइवर्सिटी, तो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डैमेज जितना हो रहा है वो मिटिगेट कर सकते, कम कर सकते हैं। जो एमिशन है वो कम करके, या रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री बना के, या गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं कर सकते। तो कंपनीज खुद के बेसिस से नहीं करेंगे बिकॉज वो प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं है। गवर्नमेंट को खुद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करती है कि कार लोन पे अगर इलेक्ट्रिक कार लेगा तो इंटरेस्ट कम होगा, या इंटरेस्ट लेंगे नहीं होगा, ऐसे सब्सिडाइज। यस, अभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के सब कार है वो इलेक्ट्रिक करती है, सिटी की सिटी में उतना कर दो। as an electric vehicle, स्कूटी makes the most sense। तो लोगों ने स्कूटी तो बहुत ले ली है ना, उसके ऊपर लेट्स स्टार्ट मेकिंग लेस सेंस है ना, बाइक कार जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो। अभी 400 यूनिट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है इधर, दो सिटीज में ही मिल जाएगा, उसके बीच में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से बैंगलोर अगर बाहर हो जाएगा तो बीच में कहाँ जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सेकंड इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में यूपीएससी के फेवरेट वर्ड्स है एंडेमिक एंड नेटिव। ये एंडेमिक स्पीसीज क्या है, नेटिव स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज उसी जगह में मिलती है, नेटिव स्पीसीज उस जगह से कहीं और भी मिल सकती है, पर दे आर नेटिव भी है। ओके, जैसे मैंने बताया ना, राइस इज नेटिव टू इंडिया, कॉटन इज नेटिव टू इंडिया, वैसा एंडेमिक का क्या है कि वो अभी रेड, तो क्या होता है रेड सैंडलवुड, वो आंध्र प्रदेश के वो एक फॉरेस्ट में ही मिलता है। ओके, चंदन जरा बोलते इट इज वेरी रेयर एंड बहुत तस्करी होती है, बैन नहीं करते गवर्नमेंट, कर्नाटक वगैरह के गवर्नमेंट तो उधर भी वो करते थे इसकी, बिकॉज वो बहुत ही हाई वैल्यूएबल है, बहुत ही महंगा है, चाइना वगैरह में तस्करी करते हैं इसकी वजह से। तो एंडेमिक स्पीसीज और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे करें, आर्टिफिशियल एक जो बना है उसमें करें, या इट विल बी नेचुरल इन सितु ना एक्स सितु। इन सितु होगा तो कहाँ पे होगा, कैसे होगा। अभी तो चीता कंजर्वेशन है, दैट इज इन सॉर्ट ऑफ इन सितु, मतलब ओरिजिनल हैबिटेट का नहीं है, पर ओरिजिनल हैबिटेट को रेप्लिकेट करने वाला हैबिटेट चूज की इंडिया का है ना, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट एरिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देख लो बीपीएससी का इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटलैंड्स, पिछले 4-5 साल। और वेटलैंड्स का नंबर भी इंडियन गवर्नमेंट में बहुत बड़ा है पिछले 4-5 साल के, रामसर साइड से है, आजाद से बहुत बड़ा। वेटलैंड्स की मतलब खासियत ये है कि जितने भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पुराने लेक्स हैं उनको ही कन्वर्ट कर दिया वेटलैंड्स, या द सर्टेन सेक्शंस ऑफ मेजर रिवर्स जहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो भी सीधा कन्वर्ट कर दिया वेटलैंड्स। मोस्ट वेटलैंड्स में क्या होता है इंपॉर्टेंस की, वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इस साल में 2 बार, फ्लैमिंगोस में है, और ये जो खाने क्रीक है उसमें फ्लैमिंगोस आते हैं अक्टूबर में। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में आई डोंट थिंक इतने सवाल आएंगे। एट द मोस्ट जो करंटली है मतलब जो कोलो नेशनल पार्क में चित्तस डाके उसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर was world's most successful environment conservation project था, उससे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स 80-85% इंडिया में है। तो प्रोजेक्ट टाइगर से पहले बहुत सवाल है, अभी नहीं आएंगे उसमें। नेक्स्ट देखो कार्बन मार्केट्स। कार्बन मार्केट्स क्या होते हैं, उसका परसेंटेज एक कैप है, whatever 100 टन्स पर ईयर whatever किसी कंपनी, उसके ऊपर जो या तो उतने पैसे किसी दूसरे कंपनी को देने पड़ेंगे जो 100 से कम कर,
मतलब बेसिकली जो 100 से कम कर रही कंपनी तो सीधा एज अ प्रॉफिट में पैसा मिल जाएगा। तू सपोज टेस्ला है तो महिंद्रा अपने 100 कंपनी होने के बाद टेस्ला को देती है। सो बेसिकली इससे होता क्या है कि कंपनी जो पोल्यूशन कर रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद पोल्यूशन करना महंगा हो जाता है। इट इज बेटर फॉर देम टू स्टॉप डूइंग व्हाटएवर दे डूइंग आफ्टर दैट। पर ऐसा होता नहीं, कंपनी तो काम ही करते हैं। नेक्स्ट थिंग ना, इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट है उससे इकोनॉमिक वैल्यू खोजने की प्रयास कर। तो इकोसिस्टम was live on a hill in some jungle area. They will try to find उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, उसकी आइस्थेटिक वैल्यू क्या है, उसकी तुम्हारे लाइफ को मीनिंग देने वाली वैल्यू। They will try to find a tangible metric for it. That is called an ecosystem. तो मतलब कंसेप्ट का सेंस ये है कि बस इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, हर चीज की एस्थेटिक वैल्यू और एग्जिस्टेंशियल वैल्यू। that comes under ecosystem. Next है ना, environmental impact assessment. Environmental impact assessment. Environmental impact assessment by law compulsory. Okay, before you open anything, any plant वगैरह जिससे पोल्यूशन होगा उससे पहले तुम्हें ये करना है, कंपनी को कोई काम नहीं करेगा। रिपोर्ट बनानी है जिस जहाँ पे बनेगा उसके आसपास के जितने विलेजेस अफेक्ट होंगे उनको जाके पिच करना है, उनका ओपिनियन लेना है, उनकी एग्रीमेंट लेना है उनसे कि चलेगा तुम्हें वगैरह। फिर स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल देना है, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, एक तुम बनाओ। एक पूरा प्रोसेस मालूम है। नेक्स्ट है ना पोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन सी। पोल्यूशन में यूपीएससी का जो मेजर फोकस रहता है वो गंगा का पोल्यूशन पे है। गंगा में पूरी पोल्यूटेड नहीं है, वो कौन सा एक दो सेक्शन से पोल्यूटेड, जो दिल्ली का सेक्शन है वो यमुना वाला सेक्शन वो सबसे पोल्यूटेड। जब भी सिटी आती है पोल्यूटेड हो जाती है, और उसके बाद फिर से कम पोल्यूटेड होते हैं, सिटी आते हैं। हाँ, तो प्रोजेक्ट गंगा चालू किया था, उसका बहुत सारे खर्च के 3-4 करोड़ पर वो मतलब इतना इजीली नहीं सॉल्व होता ना प्रॉब्लम, इतना लार्ज स्केल प्रॉब्लम सिर्फ थोड़े पैसे खर्च करके नहीं सॉल्व होता। लोगों की हैबिट्स बदलनी पड़ेगी। क्या वो कंपनीज को एक नाइट में उठा के कहीं और देख नहीं सकते। कंपनीज भी पॉलिटिशियंस के किसी कॉन्टेक्ट से होंगी या अच्छा कॉन्टेक्ट बना के रखा होगा। नेक्स्ट मेन टॉपिक लिखना, डिजास्टर मैनेजमेंट। उसमें फर्स्ट सब टॉपिक लिखना है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बताएं। जैसे अभी सपोज एक अर्थक्वेक हो गया तो कौन कहाँ पे आएगा, कौन आएगा, क्या करेगा, हेड कौन होगा उस अर्थक्वेक का, मतलब डिजास्टर के ऊपर देखते हो। ये इंडिया में आए आ सकती है अगर बुलाएगा तो। मेजर कमिटी जो डिजास्टर के ऊपर करती है लोएस्ट लेवल पे वो डिस्ट्रिक्ट कमिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी भी उसका हेड होता है कलेक्टर आया। और उसके साथ जेडपी के इलेक्टेड मेंबर्स वगैरह वो सब होते हैं, कमेटी भी होते हैं। दैट इज द बेसिक कमिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की। उसके ऊपर सीएम की कमेटी होगी, ठीक। और ऐसे नहीं कि पीएम तक जाता है, स्टेट किसी भी स्टेट तो स्टेट ज्यादा बड़ा हादसा नहीं है नेशनल लेवल तो सीएम ही देखता है मोस्ट प्रॉब्लम। बट अगर नेशनल ट्रेजेडी हो जाए तो पीएम इज द लास्ट पर्सन इन द गवर्नमेंट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड पीएम ही।
जैसे अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे बड़ी ट्रेजेडी हो, है ना, इट बिकम्स नेशनल इशू। तो बेसिक कलेक्टर से लेके ऊपर तक हायरार्की डिसीजन मेकिंग। ठीक है? तो प्रिपेयर्डनेस मतलब उसमें क्या आएगा कि रिसोर्सेज अवेलेबल है कि रेडी। फायर है, फायर डिपार्टमेंट है क्या डेवलपमेंट स्टेप सिटी में, ठीक, कितने पर्सनल है एम्प्लॉयड, आर दे वेल ट्रेन्ड, आर दे रेगुलरली ट्रेन्ड, कितने व्हीकल्स अवेलेबल। तो ये आता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अभी इसमें क्या होता है, हर स्टेट की ज्योग्राफी के लिए हर स्टेट की डिजास्टर है। उड़ीसा कोस्ट में इनका प्रॉब्लम साइक्लोन से, हर साल साइक्लोन आते हैं, पूरे गांव का कोस्ट में सब हो जाता है, फिर से नहीं बना, है ना। उनका क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना है, तो उनका अलग इशू है। अर्थक्वेक जोन के उत्तराखंड वाले, उनका मेजर इशू लैंडस्लाइड, तो उनका अर्ली वार्निंग नहीं, उनको तो निकलना ही है वहां से, उनके अलग सिस्टम से। वो हिमाचल उत्तराखंड की जमीन ही ऐसी, मतलब सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड रॉक्स है ना, हिमालय सैली तो नहीं, हिमालय का सॉफ्ट रॉक। तो फिर उसमें ज्यादा डेवलपमेंट करके भी फायदा नहीं, इसलिए रोड उतने ही बने, और थोड़ा खोलोगे तो वो रोड नीचे चले जाते हैं। तो हर रीजन के थोड़े थोड़े अलग प्रॉब्लम्स, ओके। बिहार गंगा एरिया की प्रॉब्लम्स के फ्लडिंग प्रॉब्लम्स, तो उनमें वो आर्टिफिशियल डैम्स बना के नदी का रूट चेंज करना वगैरह की बात। नेक्स्ट थिंग ना, अर्बन फ्लडिंग। Okay, see, every river floods, and it is the nature of a river to flood. Okay, because इंडिया में मानसून अचानक से आता है और 4 मंथ्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, पर विलेज एरिया में क्या होता है, नेचुरल फ्लड प्लेन होता है ना, इलाका छोड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, घास खाया गया चलते हैं। सिटीज में क्या होता है, वो फ्लड प्लेन के ऊपर सेट है। अभी बेसिकली जो बेल्ट एरिया है, फ्लड प्लेन ऑफ रिवर, और इधर तक नदी तक ये बनाया सब बिल्डिंग्स। तो it is मतलब thank God for me is on this side of the sail. ये अगर कोकण साइड होता तो पूरा चला जाता रास्ता नदी के, इस साइड कम बारिश होती है, इसकी वजह से। अभी तो 5 से जब फूटा था, तब मतलब सेकंड फ्लोर तक पानी 81 90 और पहले। नेक्स्ट कितना, हीट वेव्स। हीट वेव्स होते क्यों, हीट एस्केप मैकेनिज्म नहीं होता, या हीट एब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं सिटीज। इसकी वजह से हीट ट्रैप करके हीट डोम बनता है, तो हीट रिफ्लेक्ट होती है एक एरिया। तो ओवरऑल टेम्परेचर इतना बढ़ा नहीं है, तो उस सिटी में टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। लेकिन व्हाट इज योर हीट। तो नेक्स्ट देखना साइक्लोन्स। साइक्लोन्स इंडिया में मेजर इशू नहीं है, एक्सेप्ट द बे ऑफ बंगाल कोस्ट, जो विंटर साइक्लोन्स आते हैं। वेस्ट कोस्ट में साइक्लोन्स इतने आते नहीं है, बिकॉज वेस्ट कोस्ट के साइक्लोन्स का ट्रेंड के है कि वो वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। बहुत रेयरली कोई ईस्ट कोस्ट में आया तो प्रॉब्लम है, जो 3 4 पहले आया था। हाँ, तो उसके सब डिस्ट्रॉय हो गया था, सब मैंगोज वगैरह प्लांटेशन चले गए। उस साल से मैंगोज और मैंगो, तो मैंगो का एक ट्री उतना होने में 3 4 साल लगते हैं। नेक्स्ट देखना एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। डिजास्टर में सबसे इम्पोर्टेंट तो कम्युनिटी हो, कि सरकार कितनी भी बड़ी हो, रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं, और सर जो लोकल कम्युनिटी के हेल्प के बगैर तो कुछ कर भी नहीं सकते। ओके, एनडीआरएफ की टीम आई, उसको पता होना चाहिए क्या पुणे में क्या कर रहा है, कितना में डिजास्टर क्या है। जैसे पहाड़ था वहां से, मैं वहां पे हर 3 4 साल बाद फ्लड आ रहा है ना। तो पिछले बार 2 3 साल बाद आया था, वो पूरा सेकंड फ्लोर तक आता है, हिस्ट्री में सबसे बड़ा था। उसमें कम्युनिटी का ही हेल्प मिली है।
क्योंकि एनडीआरएफ को बताएगा वो कि कहाँ पे गए थे, है ना। और जब खाना वगैरह आता है बांटने के लिए लोगों में, बिकॉज लोगों के पास खाने नहीं है, तो बांटने वाला कौन, कम्युनिटी बांटे, लोग ही बांटना कि वॉलंटियर बेस्ड चलता है देश सर्वाइवल अलॉट, ओके, व्हिच इज अ नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ देश सर्वाइवल, पर मोस्टली वॉलंटियरिंग नहीं चलता, कम्युनिटी पार्ट। लास्ट टॉपिक में इतना इंटरनेशनल से इंटर सिक्योरिटी में फर्स्ट टॉपिक इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में क्या है, जनता बस नॉलेज कम है साइबर सिक्योरिटी पर, जनता गलीबल है, फूलिश है, स्पेशली ओल्ड एज एंड यंगर चिल्ड्रन, वेरी यंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट इतना बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट पढ़ने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बॉर्डर बोलती ही नहीं है, क्योंकि जैसे इंडिया बांग्लादेश में था, इंडिया म्यांमार में, अगर फ्रेंडली नेशन से तो बाउंड्री इतना होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इंडिया नेपाल इंडिया बोलता है। अगर फ्रेंडली नेशंस नहीं है, जैसे इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया चाइना, तो बॉर्डर होना मैंडेटरी। उसमें इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर कोई नहीं, अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं, पर इंडिया बांग्लादेश की जो जमीन है वही ऐसी कि वहाँ बॉर्डर टच करेगी। तो फ्लड प्रोन एरिया है वो, ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो वो आज इधर है उधर, कल उधर बड़ी वाटर लेवल उसमें है ना, बाढ़ आती जाती रहती होती है, क्रोकोडाइल्स वगैरह वगैरह करना भी मुश्किल है, तो बट जितना भी मिलेगा वो करेगा। और आपके बोला तो म्यांमार के ऑर्डर पे कैसे यार ट्राइंग कर, पूरा घना जंगल है, तो पता नहीं कैसे कर, थोड़ा सा बात है, थोड़ा सा तो लिखना टेरर फाइनेंस। टेरर इसको अगर रोक नहीं सकते, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप अ टेररिस्ट। ऑफेंस करना इजी, डिफेंस करना बहुत मुश्किल है ना, तो पता नहीं है कौन अटैक कर रहा है, कहां से कर रहा है, डिफेंस में ऐसे कैसे ज्यादा कैसे कुछ सफल, ऑफेंस करने वाले को सिर्फ ऑब्वियसली एक बार ही सही होगा। तो टेरर, इफ यू कांट स्टॉप टेररिस्ट, स्टॉप देयर फंडिंग, टेरर फाइनेंस। तो टेरर फाइनेंस में बहुत काम है, एनजीओ के ऊपर क्रैकडाउन के बाहर से जितना भी पैसा है उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए अकाउंटेबिलिटी के वगैरह। टर्न आउट की जो पाकिस्तानी पैसा है, इट केम इनटू इंडिया एंड इट वेंट टू फंड माओइस्ट, नक्सलाइट्स वगैरह, मतलब ऑब्वियसली दे आल्सो वांट कि इंडिया में चलता रहे सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट, ऐसा उस पे क्या करेगा। नेक्स्ट वीक था लेफ्ट विंग एक्सपीडिशन, ये लगभग अभी खत्म ही होने का, पिछले 5-10 साल में माओवादी तो लेफ्ट विंग नक्सलाइट्स पूरे खत्म ही कर दिए, 300 से ज्यादा मर्डर्स, 270 मर्डर्स भी, 350 सरेंडर्स, ओके। हाँ, नेक्स्ट लिखना मनी लॉन्ड्रिंग, फिर लिखना सोशल मीडिया थ्रेड्स, द न्यू इमर्जिंग टॉपिक। सोशल मीडिया थ्रेड्स के उसमें भी हम पूछेंगे पर्सनल ओपिनियन की, फिर कितना रेगुलेट करना चाहिए कि नहीं करना, सोशली क्या रेगुलेट करना चाहिए, कैसे रेगुलेट करना चाहिए, सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए, मतलब कंपनी को ही बोलना चाहिए तुम रेगुलेट करो, तुम अपने जो अपॉइंट करके, या गवर्नमेंट उसमें से भी कर सकती, ओके, ऐसे क्वेश्चन है वहां पे ये तो मेंशन जस्टिफाइंग लाइन विद फैक्ट्स। लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज लास्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज काम धीरे धीरे कमी होता जाता है, बिकॉज ऑर्गेनाइज काम ज्यादा तब होता है जब सरकार की पावर कम, सरकार की एक्टिविटी को कंट्रोल क्राइम, तो सरकार के पास रिसोर्स की, जैसे जैसे इंडिया की सरकार पैसे वाली बनती गई, इनके पास रिसोर्सेज आए टू क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज।
ओके, ऑर्गेनाइज क्राइम इसलिए बढ़ता है बिकॉज उनके पास ज्यादा रिसोर्स सरकार के कंपेरेटिवली, कि मुंबई माफिया हैड मोर मनी देन मुंबई कॉर्पोरेशन, इसलिए वो इतना चल रहा है। धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ती गई तो सरकार के पास ज्यादा पैसा है, एंड एक बार कोई तो आ गया कि अगर वो वांट्स टू फिनिश, वो हैज अ पॉलिटिकल विल टू फिनिश ऑर्गेनाइजेशन, तो कर देगा। अगर वो जब तक मिले हुए होंगे तब तक नहीं होगा। इतने ही लास्ट में बहुत सही तरह से। आई थिंक नेक्स्ट वीक से तो अलग है। डेल्टा नहीं, कल क्या कर जाए। वहाँ के रायगढ़ के बाद